إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز من قائل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عز من قائل فلما أسلم وتله للجبين إلى آخر الآيات. وجاء في البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق أينما كنا حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم أو كما قال رضي الله تعالى عنه. برادر اسلام کی جن بلی بھائیوں نوجوان دوستوں احباب بزرگوں قابل احترام اور بہنوں آدمی، قرآن کریم کی آیات میں بار بار جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، ان کی زندگی کا، ان کی دعوت کا، ان کے جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امت کے نبی اور اسی طرح سے اس نبی کے امتیوں کے آئیڈیل ہیں. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا إلى آخر الآية. تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی سیرت میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے. قرآن کریم کی آیات میں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور تقریباً قرآن کریم میں 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا کسی نہ کسی طرح سے ذکر آیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت میں خصوصیت کے ساتھ جو بات ذکر فرمائی ہے، ان کی سیرت، ان کے خانوادے کی سیرت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل یعقوب علیہ السلام، اور ان کے نیچے حضرت یوسف علیہ السلام. الغرض یہ جو 4 سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہ 4 جو سلسلہ ہے، یہ چاروں نسب جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا نسب ہے. اس پورے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ ان کی سیرت میں مشترک طور پر دکھائی دیتا ہے، وہ لفظ اسلام کا لفظ ہے. اسلام جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلم ہیں، یہ لفظ اسلام کا لفظ، مسلم کا لفظ، مسلمون کا لفظ، مسلمین کا لفظ، مسلمہ کا لفظ، اسلام لاؤ کے الفاظ، یہ لفظ مختلف انداز سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں، ان کے خانوادے کی سیرت میں، ان کی دعوت میں، ان کے جہاد میں اور ان کی تمام تر قربانیوں میں، آزمائشوں میں مشترک طور پر دعوت دکھائی دیتا ہے. میرے بھائیوں، بے بزرگوں، وہ ساری آیتیں تو نہیں پڑھی جا سکتی، وہ ساری آیتوں، ان تمام آیتوں کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان تمام آیات کا جو مقصد ہے، جو حاصل ہے، جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، درس ہے، نصیحت ہے، اور خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے، یعنی اس امت کے لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اس پہلو پر واقعی غور کریں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، جگری دوست ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جگری دوست بنا لیا، صفی بنا لیا، چنندہ بنا لیا، برگزیدہ بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خوبیوں سے، مختلف صفات سے انہیں نوازا. اس نبی کہ ہم سب کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ تم ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو، ان کے آئیڈیل کو اپنے سامنے رکھو، ان کے اسوے کو اپنے پیش نظر رکھو،
اور अब उसी की रोशनी में अपनी जिंदगियों को गुजारो। जिंदगी में आजमाइशें हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव है, जिंदगी में जेरो गम है, जिंदगी के अंदर दुख और सुख है, जिंदगी के अंदर कुर्बानियां हैं, जिंदगी के अंदर जो इस्लाम की जिंदगी है, तौहीद की जिंदगी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, इस तरह की जिंदगी गुजारने में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे आवाज हैं, बहुत सारे रोड़े हैं, बहुत सारे रखने हैं, मुख्तलिफ अंदाज की दुश्वारियां हैं। इन तमाम हालात में तुम्हारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई आइडियल है, सबसे बड़ा अगर कोई उसवा और नमूना है, तो मेरे खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत है, उनकी जिंदगी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इसीलिए बयान फरमाई है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जगह जगह इस्लाम का लफ्ज़ आ रहा है। इस्लाम का लफ्ज़ मशहूर आयत करीमा जिसे हम और आप अक्सर व बेशतर पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, उसमें आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है इस सिलसिले में कि मुसलमान जो हम कहलाते हैं, इस्लाम की वजह से मुसलमान कहलाते हैं, इसका जो सरचश्मा है, इसका जो खुला हुआ नमूना है, इसका जो प्रैक्टिकल आइडियल है, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है। इसलिए हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु व फी हाज़ा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उसने अपने मुफस्सिरीन ने गुफ्तगू की है कि उसने से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की जात है या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात है। दोनों तरह की बातें तफसीर में है। मेरे भाइयों, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसी ने तुम्हें मुसलमान नाम रखा, उसी ने तुम्हारा मुसलमान नाम रखा, मिन क़ब्लु व फी हाज़ा, इससे पहले भी और इस उम्मत में भी, यानी इस उम्मत से पहले जो दीगर उम्मतें गुजरी हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात से लेकर के उम्मत मुहम्मदिया से पहले जो बनी इस्राइल के अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, उनमें भी और उसके बाद इस उम्मत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, या इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। मेरे भाई, ये इस्लाम क्या है? अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात होगी कि हम सब मुसलमान हैं, बरसों से मुसलमान हैं, इस्लाम की तालीमात को पढ़ते और सुनते हैं, इस्लाम की किताब जो सरचश्मा है कुरान करीम, उसे पढ़ते समझते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पढ़ते समझते हैं, और अभी भी पढ़ रहे हैं, उसी माहौल में बैठे हैं, इस्लाम ही के एक हुक्म और एक शरीयत पर अमल करने के लिए अल्लाह के घर में हाजिर हैं। लेकिन इस्लाम का माना क्या है? हकीकत में इसमें मेरे लिए सबक है, आपके लिए सबक है, हमारे तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए सबक है, दर्द है, जवानों के लिए, सबके लिए इसके अंदर दर्द है, इबरत है। इसीलिए आप देख रहे होंगे यक्सर बेशतर इस माहौल में, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत और एक रहमत और एक खुशी का मौका ईद उल अज़हा का हमारे करीब है और बिल्कुल आने को है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रहमत है मेरे भाइयों, कि खुशी मनाने में भी हम आजाद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के पाबंद हैं, ताकि खुशी में भी अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करें, कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए। तो ये ईद जो हमें ईदें मिली है, दो ईदें, ये बहुत सारी जाहिलियत की ईदों से हमें निकाल करके और गंदगियों से आजाद करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से दो ईदें अता फरमाई हैं। ये जो ईद उल अज़हा है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से, बल्कि यूं समझे कि उन्हीं की सीरत का, उन्हीं की सीरत की, उन्हीं की जिंदगी की एक याद है, जिसे मुसलमान अल्लाह के फज़ल व करम से हर साल ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को, फिर 11, 12, 13 तारीखों को अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुझे दरअसल चंद बातें जो आपसे रखनी है वो इसी ताल्लुक से रखनी है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम का सही माना क्या है, सही मानों में मुसलमान कैसे हो सकता है, क्यों बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ फरमाई, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई, जबकि दोनों नबी हैं, दोनों पैगंबर हैं, एक खलीलुल्लाह है, दूसरे हबीबुल्लाह हैं, दोनों अल्लाह तबारक व तआला के मुस्तफा हैं, मुज्तबा हैं, चुनिंदा हैं, बरगुज़ीदा हैं, महबूब और पैगंबरान हैं। उसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों दुआ करते हैं कि अल्लाह हम दोनों को मुसलमान बना दे, हम दोनों को मुस्लिम बना दे, मेरे खानदान के लोगों को मुस्लिम बना दे। बार बार ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से अगर हमें सुनने में आ रही है तो फिर क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि इस्लाम का माना वाकई हमें बार बार जानने की जरूरत है, और अगर जान लेते हैं तो उसके तकाज़ों को समझना जरूरी है, या फिर सही मानों में मुसलमानियत क्या है, सही मानों में इस्लाम क्या है, इसे समझने की जरूरत है और अपनी अपनी जिंदगी में बदलने की जरूरत है। ये सबक है मेरे भाइयों। क्यों? इसलिए इस बात का हुक्म दिया जाता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में, उनके उसवे में, उनके आइडियल में अपने लिए आइडियल तलाश करो, नमूना तलाश
तलाश करो, रास्ते जिंदगी चलने का, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश करो। कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनकी खानवादे ने जिंदगी गुजारी है और उन पर ईमान लाने वाले मोमिनों ने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, तो हमें ये समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमने 2-3 आयतें आपके सामने पढ़ी और बात लंबी भी नहीं करनी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर बात करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताबिक 2-3 आयतें हमने आपके सामने पढ़ी है। एक मशहूर आयत करीमा आप देखिए, हम और आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो मैं यरक़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़ीहा नफ्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आप देखिए कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के बारे में, उनके अकीदे के बारे में, उनके दीन के बारे में, उनके तौर तरीके के बारे में अगर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो इब्राहीम के तरीके से मुंह मोड़ेगा, जो इब्राहीम के आइडियल से हटेगा, जो इब्राहीम की मिल्लत से दूर भागेगा, उसका ये अंजाम होगा, वो बेवकूफ होगा, वो नादान होगा, वो अहमक होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये बात कहता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी मिल्लत, उनका अकीदा, उनका दीन, उनका जिहाद, उनकी कुर्बानी और उनकी जिंदगियों में जो आजमाइशें आई हैं और जिसमें उन्होंने कामयाबी का तमगा उठाया है, जिसकी वजह से उनका तज़किरा बार किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये वाकई हमारे लिए इबरत का सामान है कि हम समझे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इब्राहीम के रास्ते को छोड़ने वाला, इब्राहीम के आइडियल को छोड़ने वाला बेवकूफ हो सकता है, नादान है, अहमक है, जाहिल है। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़ीहा नफ्सा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से वही मुंह मोड़ेगा, वही एराज करेगा, वही रूगर्दानी करेगा, वही भागेगा, वही दूर हटेगा। मन सफ़ीहा नफ्सा, जिसने अपने आप को नादान बना लिया है, जो अपने आप को बेवकूफ बना चुका है, जो अहमक है, नादान है, जाहिल है, वही शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से दूर भाग सकता है। क्यों? वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़ी दुनिया, हमने उनको दुनिया में चुन लिया, दुनिया में मुंतखब कर लिया, उनको अपना खलील बना लिया, जिगरी दोस्त बना लिया। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और ये इब्राहीम जो मेरे खलील है, ये क़यामत के दिन आखिरत में सालिहीन में से होंगे। अल्लाह खुद शहादत देता है कि मेरे नेककारों में से होंगे। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़ी दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आप इस बात पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज की तरतीब क्यों फरमाई है, क्यों तरतीब फरमाई है। उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने इब्राहीम से कहा, जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम से कहा अस्लिम, इस्लाम लाओ, क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जिब्रील, जो अल्लाह तबारक व तआला के बरगदीदा है, पसंदीदा है, खलील है, मेरे भाई जिब्रील है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहता है अस्लिम, इस्लाम लाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना ताख़ीर, बिना तवक्कुफ जवाब देते हैं अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान के परवरदिगार के लिए इस्लाम लाता हूँ। ये कौन सा इस्लाम है जिसकी मांग नबियों से की जा रही है और खलीलुल्लाह से की जा रही है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके जवाब में ताख़ीर भी नहीं करते, सेकंड के लिए सवाल भी नहीं करते। अल्लाह, तूने मुझे नबी बनाया है, पैगंबर बनाया है, अपना खलील और जिगरी बना लिया है, और फिर तेरा हुक्म होता है अस्लिम, झुक जा, ताबे फरमान हो जा, इस्लाम ले आ। ये सवाल नहीं किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये जानने की वाकई जरूरत है कि इस्लाम कौन सा है जिसकी मांग इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की जा रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसके बाद आप देखिए दूसरी जगहों पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वारिना मनासिकना व तुब अलैना। आगे आयत में और बहुत सारी बातें बयान की गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला वजअलना, हम दोनों को बना दे, यानी मुझे इब्राहीम को और मेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुस्लिमैनि, दोनों को मुसलमान बना दे। मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को क्या बना दे? मुसलमान बना दे, मुस्लिम बना दे। खुद दुआ करते हैं, दोनों नबी हैं, दोनों पैगंबर हैं, एक अल्लाह का खलील है, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला का नबी है, और दोनों के लिए अल्लाह के नबी इब्राहीम दुआ करते हैं कि हम दोनों मुसलमान बना दें। और क्या आगे फरमाया, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, और हमारे खानदान में से भी उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारे खानदान में से भी, हमारी ज़ुर्रियत में से भी एक कौम को, एक उम्मत को मुसलमान बना दें।
میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آپ سوچیں کہ آخر کون سا اسلام ہے؟ ہم بھی تو 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال سے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام سے اگر اس مسلمانیت کی مانگ کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کون سا ہے جس کی مانگ کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بقیہ آیتوں پر بعد میں کریں گے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سا اسلام ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ اگر اس اسلام کا معنی قرآن کریم کی تفسیروں میں دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی جو حدیثیں ہیں ان کی شروعات میں اگر آپ دیکھیں، عقیدے کی جو کتابیں ہیں اسلامی لائبریریوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسلام کا صحیح معنی کیا تو بتلایا گیا ہے۔ اسلام دعوے کا نام نہیں ہے، اسلام ظاہر پرستی کا صرف نام نہیں ہے، اسلام ایک مختلف ادیان کے ناموں کی طرح، مختلف دھرموں کے ناموں کی طرح، جیسے مختلف دھرموں کے نام ہوتے ہیں ایسے ہی مختلف دھرموں کے ناموں کی طرح محض ایک دھرم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورے طور پر منہج ہے، زندگی میں ڈھلا ہوا، زندگی میں اترا ہوا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ جب تک وہ نظام اور سسٹم ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا تب تک مسلمانیت کا نام رہ سکتا ہے، دعویٰ ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں اسلام نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں مسلمانیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی مسلمانیت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم واقعی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس کا مطلب کوئی نہ سمجھے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یا مسلمان ہونے میں ہمیں کوئی شک ہے یا ہم کوئی تکفیر کی کوئی بات کہتے ہیں، نہیں۔ مسلمانیت کا تقاضا کیا ہے، صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے، جس کا مطالبہ ابراہیم اور اسماعیل سے کیا جا رہا تھا، ان کی دعائیں ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں اسلام کا معنی ہے الاسلام هو الاستسلام، الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک وأهله۔ یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے، اسلام کی ڈیفینیشن اس کی پہچان ہے، اس کا تعارف ہے کہ اسلام صحیح معنوں میں کیا ہے، اور وہی صحیح معنوں میں جو اسلام ہے وہی ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں خلل ہے، کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے، کہیں نہ کہیں شکوے ہیں، کہیں نہ کہیں شکایتیں ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور اس کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں تو اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہے استسلام، سرے تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رکھنا۔ فیصلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ بظاہر برا بھی ہو سکتا ہے، تکلیف کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں خوشی کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، غم کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کے فیصلے پر اپنے آپ کو کیا کرنا، راضی رکھنا، آمادہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی کتاب میں اترتا ہے، جو وحی کے ذریعے سے آتا ہے، جو قرآن میں آتا ہے، سنت میں آتا ہے، اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، جھکا دینا، تیار رہنا، اسے کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اسے تسلیم کرنے میں کسی بھی طرح کا توقف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننے میں، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں کسی بھی طرح سے چوں چرا ایسا ویسا کیوں ایسا کوئی سوال نہیں آنا چاہیے۔ پورے طور پر استسلام، سرے تسلیم خم کر دینا، اللہ کے فیصلے پر جھکا دینا۔ اب فیصلے دو طرح کے ہیں، ایک شرعی فیصلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر اترتا ہے، کتابوں کے اندر اترتا ہے، یعنی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ مثال سے بات کریں تو ان کے صحیفے جو اتارے گئے تھے اس کے اندر ساری باتیں بتلائی گئی تھی، وحی کے ذریعے سے جو باتیں بتلائی جاتی تھی، یہ شریعت کا حکم اور فیصلہ، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، سب پر ہمیں پورے طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر کے فیصلے ہیں، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آگ میں ڈالا جائے گا، یہ بھی نوبت آ سکتی ہے، بادشاہ وقت سے ٹکرانے کی نوبت آ سکتی ہے، اور تمہیں مختلف انداز کی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر بھی تمہیں راضی رہنا چاہیے۔ تو اسلام کا اصل معنی استسلام ہے۔ اسی سے یہی سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اسلام کا ٹرانسلیشن یا اس کا ترجمہ صرف اور صرف پیس سے کرتے ہیں، یہ ترجمہ ناقص ہے، یہ ترجمہ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ اسلام کا جو صحیح معنی ہے وہ استسلام ہے، تابعداری، جھک جانا، مان لینا، تسلیم کرنا، ہمیشہ آمادہ رہنا، بلا چوں چرا، بلا توقف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے تیار رہنا، یہ اسلام کا صحیح معنی۔ اب اسلام کے معنی پیس کا جو کیا جاتا ہے، پیس کے معنی کیا ہوتے ہیں، رحمت کے ہوتے ہیں، نرمی کے ہوتے ہیں، ملائمت کے ہوتے ہیں، ہمدردی کے ہوتے ہیں وغیرہ۔ یہ جو پیس کا جو معنی ہوتا ہے یہ اسلام کے اس
कंप्लीट मुकम्मल जो माना है इस्लाम का, उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक हिस्सा है कि इस्लाम के अंदर रहमत है, इस्लाम के अंदर हमदर्दी है। इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी हमदर्दी है, मेरे हाथ मवेशियों के साथ भी हमदर्दी है। ये इस्लाम का पीस है, इस्लाम की हमदर्दी है। तो ये कंप्लीट माना नहीं है इस्लाम का, इस्लाम का छोटा सा एक जुज है, इसका हिस्सा है, पीस। वरना इस्लाम का माना मुकम्मल तौर पर पीस नहीं होता। इस्लाम का मुकम्मल माना क्या है? इस्तिस्लाम। अच्छा, लिल्लाहि बित्तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के साथ उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देना, अल्लाह की तौहीद को ज़बान से मानना, दिल से तस्दीक करना, तौहीद पर प्रैक्टिकल अमल करके दिखाना, कभी पेशानी को किसी और के सामने नहीं झुकाना, रुकू किसी और के सामने नहीं करना, सज्जा किसी और के सामने नहीं करना, दुआओं के लिए हाथों को किसी और के सामने नहीं उठाना, किसी से गिरिया नहीं करना, किसी से हाजत बड़ाई का सवाल नहीं करना, किसी से सच्ची उम्मीद न लगाना अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। ये है लिल्लाहि बित्तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तौहीद के साथ इस सर को झुका देना कि झुक गया है अल्लाह तबारक व तआला तेरे सामने ये सर, अब तेरे अकेले के सिवा किसी के लिए कोई इबादत का काम नहीं हो सकता है। हमने इस बात के लिए अपने सर को झुका दिया है, अपने आप को तस्लीम कर दिया है तेरे सामने। तो ये हो गई बात नंबर एक। दूसरा पहलू क्या है? वल इंकियादु लहु बित्ताअ, इताअत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर पूरे तौर पर चलना, इताअत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर चलना, अल्लाह की हर चीज में इताअत करना। उसने कहा मानो मान लेना, उसने नबी को भेजा कहा मेरे नबी को मानो मान लेना, उसने किताब में उतार दिया मान लेना, सुन्नत के जरिए पहुंच गया हुक्म मान लेना। जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जा रहा है मानने के लिए, करने के लिए, करके दिखाने के लिए पूरे तौर पर उसके लिए इंकियाद होना चाहिए, इताअत के लिए पूरी आमादगी होनी चाहिए, इताअत के लिए पूरी ताबेदारी होनी चाहिए। उसमें कहीं चूचरा नहीं आना चाहिए, कहीं उसके अंदर तवक्कुफ नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए, दुनिया आड़े ना आए, औलाद आड़े ना आए, मनसब आड़े ना आए। ये नफ्स जो पापी नफ्स है, शैतान के वसवसे यहाँ दाखिल होते हैं, ये बीच में आड़े न आने पाए, घायल न होने पाए। और यही सबक है सबसे बड़ा इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत का। ये जानवर जो कुर्बानी के हम सबक करने वाले हैं, मेरे भाई ईद उल अज़हा के मौके पर ये हमें पैगाम देता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से कि हम ये सबक सीखें कि सिर्फ जानवर नहीं ज़बह करना है, बल्कि अल्लाह के सारे अहकाम पर तौहीद का मसला हो, शिर्क से दूरी का मसला हो, नमाज की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करने का मसला हो, रोजा रखने का मसला हो, ज़कात देने का मसला हो, हज बैतुल्लाह और उम्रे की अदायगी का मसला हो, हलाल और हराम की पाबंदी करने का मसला हो, जुल्म ज़्यादती से बचने का मसला हो। जिंदगी के तमाम तर मसलों में हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे हैं। ये सबक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का। और मैं भी बातें कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे भाई समाज जी कर रहा था, दूसरा नुकता क्या है? इताअत करना पूरी आमादगी के साथ, ये है इस्लाम का सच्चा माना। और तीसरा नुकता इसके अंदर क्या आता है? वल बराअतु मिनश शिर्क व अहलिही, शिर्क से और शिर्क वालों से यानी मुशरिकों से पूरे तौर पर बेदारी का ऐलान, कोई ताल्लुक नहीं है। इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अज़ाबतु अबदन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उनकी उम्मत के लोगों ने ऐलान किया था हम तुमसे बेजार हैं। वो जो मुशरिक कौम थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिसके अंदर हजरत इब्राहिम के वालिद आदर भी थे, जो बुत फरोश थे, बुत बनाते भी थे, बेचते भी थे। और इब्राहिम की कौम में ये बुतों की परस्ती भी होती थी जमीन पर बनाए हुए, और आसमान की सितारों की, ऐसे ही चांद और सूरज की भी पूजा हुआ करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उनकी कौम ने ये बेदारी का ऐलान कर दिया था हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शिर्क से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मुशरिकीन से, हम सबसे बेदारी का ऐलान करते हैं, सबको बाइकाट करने का ऐलान करते हैं। ये तीन चीजें जब पाई जाएंगी और इस पर हम पूरे तौर पर तैयार होंगे किसी किस्म के चूचिरा के बगैर, तब जाकर के हमारा इस्लाम उस माने में होगा जिस माने में अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम चाहता है। और जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अपने लिए दुआ फरमाई, मुझे मुसलमान बना दे, मेरे बेटे इब्राहिम इस्माइल को मुसलमान बना दे, मेरी ज़ुर्रियत को मुसलमान बना दे। ये बात उस वक्त जाकर के सही मानों में दुरुस्त हो सकती है जब हम वाकई सही मानों में मुसलमान हो जाए। तो ये है इस्लाम। इस्लाम इस्तिस्लाम का नाम है, तस्लीम कर देने का, राजी हो जाने
होगा। तो इस्लाम का सही माना क्या है? तस्लीम और रिज़ा, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, शिर्क और मुशरिकीन से बेदारी का ऐलान करने के लिए, ये सही मानने। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर एक इस्लाम का नाम लेने वाला, इस्लाम का दावा करने वाला, इस्लाम की किताब और इस्लाम के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावा करने वाला किसी मोड़ पर जिंदगी के इस्लाम की किसी बात को, किसी हुक्म को, किसी फैसले को, चाहे वो उसके मुआफिक हो या उसके मुखालिफ हो, उसके हक में जाती हो या उसके खिलाफ जाती हो, किसी भी मसले में अगर हमने आपने किसी ने तवक्कुफ किया, टाल मटोल किया, चूचरा किया, उसके मानने के लिए पूरे तौर पर आमादा नहीं हुए, जबान से कहा लेकिन अमल से नहीं किया, तो सही मानों में इस्लाम हमारी जिंदगियों में नहीं है। ये सबक मेरे भाई पैगाम है। आपको फिर आगे बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इब्राहिम के अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए जब गए, वहां पर भी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया? फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों मुसलमान हो गए। अपनी जबान में तर्जुमा करने के लिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों इस्लाम ले आए, यानी दोनों अल्लाह के हुक्म पर पूरे तौर पर तैयार हो गए। बाप तैयार है सबक करने के लिए, बेटा तैयार है अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होने के लिए। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों तैयार हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और इब्राहिम ने अपने बेटे को पेशानी का बल लिटा दिया और हाथ में छुरी लेकर के गर्दन पर चलाने ही जा रहे थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान हुआ, या इब्राहिम क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलागुल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इला आखिर आयत सूरह साफ़ात के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां भी जिक्र किया, क्योंकि मेरे भाइयों, अगर ये इस्लाम इस्तिस्लाम के माने में नहीं होगा, तस्लीम और रिज़ा सच्चे माने में नहीं पाई जाएगी, तो याद रखो ये तारीख इंसानी का ऐसा वाकया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि एक बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलानी चाह रहा हो। और वो भी मामला नॉर्मल नहीं था कि चलो 10 बेटे हैं, एक को कुर्बान कर देने में कोई मसला नहीं है, ऐसा भी कोई मसला नहीं था। बरस की दुआओं से, तमन्नाओं के बाद इब्राहिम के यहाँ ये नरीना औलाद पैदा हुई थी। बड़ी दुआओं के बाद, तमन्नाओं के बाद, उसके बाद मेरे भाइयों ये हुक्म आ गया कि इसे सबक करना है। इस्लाम ये है कि तुम तस्लीम कर लो हुक्म रखो, इस्लाम ये है कि फैसले पर राजी हो रहा होता है, तब जाकर के मेरी मांग में इस्लाम आएगा। तो ये है मेरे भाइयों, ये है खुलासा उसका। और जाओ हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करके देखो, सबके सब सरापा तस्लीम दिखाई देते हैं, सरापा इस्तिस्लाम का नमूना दिखाई देते हैं, सरापा रिज़ामंदी दिखाई देते हैं। बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार, बेटा ज़ुबान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार। माँ हाजरा अलैहिस्सलाम वो भी तस्लीम का नमूना, जब उनको और शीरखार बच्चे को जो हाथ पांव मारता रहता है, 6 महीने साल भर का बच्चा मेरे भाइयों, और बच्चे को जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मक्के की बेआबो किया वादी में ले जाकर के छोड़ दिया गया, चट्टानों वाली सरजमीन पर, काले पत्थरों वाली सरजमीन पर, जहां कोई आदम नहीं, कोई आदम ज़्यादा नहीं, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था, ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ने का हुक्म आया। और छोड़ करके आने लगे, वो थोड़ी सी खजूर और थोड़ा सा पानी था जो एक दिन भी शायद न चल सकता था, उसे छोड़ करके आने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पलट करके जाने लगे, माँ ने कहा, इस्माइल की माँ ने उम्मे इस्माइल हाजर ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप इब्राहिम, कहाँ जा रहे हैं आप? आइना तत्रुकुना इला मन तत्रुकुना बिहादल वादी, भला बोलिए तो कि आप हमको, यानी मुझे और मेरे इस चीरखार बच्चे को इस चट्टानों वाली सरजमीन के में जो आप छोड़ करके जा रहे हैं, किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? कौन हमारी देखरेख करेगा? एक बार कहा कोई जवाब नहीं, 2 बार पूछा कोई जवाब नहीं, तीसरी बार पूछा और साथ में ये भी सवाल किया, अल्लाहु अमरका बिहादा। इब्राहिम जवाब नहीं दे रहे,
क्या ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है कि मुझे और मेरे इस चीरखार बच्चे को इस चट्टानों वाली सरजमीन पर छोड़ करके चले जाए? कहा नाम, हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा तब आप जाइए, तब तो अल्लाह के हवाले है। वला युज़य्युनल्लाहु अबदा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो तस्लीम है, राज़ी है, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर आमादा है। अल्लाह ताला हमें हरगिज़ ज़ायल नहीं करेगा, अल्लाह हमें हरगिज़ ज़ायल नहीं करेगा। सबक है बच्चों के लिए, सबक है जवानों के लिए, सबक है बापों के लिए, दादों के लिए, सबक है उम्मत की माँ और बेटियों के लिए, सबके लिए सबक है। और सबक कौन सा है? तस्लीम का सबक है, रिदा का सबक है, इस्लाम का सबक है, ताबेदारी का सबक है, हुक्म इलाही पर झुक जाने का सबक है। शरीयत का हुक्म है झुक जाओ, तक़दीर का फैसला है झुक जाओ, हाय वाय मत करो, बावेले न बचाओ, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने के काम न करो। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तो ये है सबक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का। ये जो कुर्बानी आ रही है, याद रखो ये कुर्बानी महज ज़ाहिरी तौर पर ये चंद जानवरों को खरीद करके लाना या उन्हें पालना और 50,000 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए के जानवरों को छुरी चला करके ज़बह कर देना, उनका खून बहा देना, उनके गोश्त को खा देना और गरीबों फकीरों मुताबिक में तकसीम कर देना, ये सिर्फ ज़ाहिरी कुर्बानी अगर है तो इस्लाम का सच्चा माना नहीं है। अब शरीयत इस्लामिया में आए, इसमें देखते हैं इस्लाम के अंदर सबसे ऊंचा काम कौन सा है? अल्लाह की तौहीद का काम है। उसके बाद सबसे ऊंचा काम कौन सा है? इक़ामत सलात है। उसके बाद कौन सा है? ज़कात की अदायगी है। उसके बाद क्या है? रोज़ा रखना है। उसके बाद क्या है? हज बैतुल्लाह उम्रे की अदायगी है। ये इस्लाम के सुतून है, ये पिलर्स है जिस पर इमारत ठहरती है, इमारत कायम होती है। अब अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमने अगर वाकई तस्लीम कर दिया है, हम वाकई राजी हो चुके हैं, वाकई हमने अगर अपने आप को अल्लाह के हुक्म पर आमादा कर लिया है, अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को सही मानों में झुका दिया है, सही मानों इस्लाम के फॉलोअर हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वो भाई जो कुर्बानी के मौसम में बड़ी कुर्बानियां करते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करते हैं और लाखों के जानवर ज़ब्ह करते हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई हर्ज है, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तौफीक अता फरमाए, लेकिन ये जो काम है ना, ये इस्लाम का, तस्लीम का, रिदा का, ये काम उस बड़े काम से बहुत छोटा है जिसको हम लोग नमाज कहते हैं, उससे ये बहुत छोटा काम है। जिसको हम ज़कात कहते हैं उससे बहुत छोटा काम है। जिसको हम रोज़ा कहते हैं उससे बहुत छोटा काम है। जिसको हम हज बैतुल्लाह रोज़ा कहते हैं उससे ये बहुत छोटा है। वो सब तो सुतून है, सुतून पिल्लर है दीन के, अल्लाह के दीन का शीश महल उसी पिल्लरों पर, उन्हीं सुतूनों पर कायम है। भला वो कौन सा इस्लाम है हमारी जिंदगियों में कि हम कुर्बानी करने के लिए बकरे को 5 लाख 10 लाख के खरीद करके लाते हैं, लेकिन इससे बड़ा काम इस्लाम का अल्लाह के सामने झुक जाने का, अल्लाह के सामने सरे तस्लीम हम कर देने का, नमाज का है, नमाज का, उसकी पाबंदी हम नहीं करते। हम में से कितने हमारे भाई हैं, कितनी बहनें हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने जवान हैं जिनकी जिंदगियों में नमाज की पाबंदी नहीं है। नमाज का एहतमाम बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं है, लेकिन कुर्बानी के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर उनके यहाँ कुर्बानी के जानवरों के लाने और ज़ब्ह करने के फैसले 2 महीने पहले से होने लगते हैं। उसके लिए कर्ज भी लेने की नौबत आ जाए कोई मसला नहीं है, जो भी जतन करना पड़े सब करते हैं। सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई कि कौन सा इस्लाम है कि हमने सुन्नत मुअक्कदा के लिए इतनी कोशिश करते हैं हम, और अल्लाह का सबसे बड़ा फरीदा तौहीद के बाद जो नमाज है, सुतून है, पिल्लर इस्लाम का, रोजा है, हज है, ज़कात है, वो हम देने के लिए तैयार नहीं होते, आमद नहीं होते, ज़कात नहीं अदा किया है, कुर्बानी 5 लाख की करता है। मेरे भाई कौन सा इस्लाम है? इसका मतलब इस्लाम उस माने में नहीं है, और माने में इस्लाम नहीं है जिस माने में इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। इस्लाम इस इस्लाम का नाम है पूरी आमादगी, और जो चीज सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से तरीफ करने वाली है उसका एहतमाम सबसे ज्यादा होना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा है कुर्बानी। अगर किसी ने ताकत के बावजूद भी कुर्बानी नहीं किया अभी, तो उससे उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मानता है कि सुन्नत मुअक्कदा है, ताकत भी है, लेकिन नहीं किया, कभी जनता था लेकिन कभी नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके दीन पर, उसके ईमान पर। लेकिन भला मुझे बताओ कि इसका इतना एहतमाम किया जाता है, और वो नमाज जिसके छूट जाने पर
कुफ्र का फतवा है मेरे भाइयों। इस्लाम के बीच में और मुसलमान इस्लाम के बीच में और बंदे के बीच में नमाज का फासला है। नमाज नहीं पढ़ता इंसान तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, कुर्बानी के लिए भी कोशिशें करता है, ज़कात बरसों से नहीं देता या थोड़ी बहुत दे देता है, चंद हिस्सा उसका दे देता है, बकिया नहीं देता कुर्बानी के लिए, उसे इतनी फिक्र होती है। ऐदन इस्लाम वो ऐदन इस्लाम, कहाँ है इस्लाम, कहाँ है हुक्म इलाही के सामने झुक जाना, कहाँ है तस्लीम, कहाँ है रिजा, कहाँ है ताबेदारी, कहाँ है अल्लाह के फैसले के सामने अपने सर को झुका देने का जज्बा। जरा सोचो, हर आदमी अपने गिरबान में झांक करके देखे, अपने गिरबान में झांक करके देखे, अपना जायजा अपना मुहासबा करे। एक बात मैं आखिरी में अर्ज करके बात खत्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं हज़रत उबादा इब्न सामित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी के अंदर बयान फरमाते हैं कि बायाना, सुनिए ये सबक है वही जो बात आपके सामने बयान की गई है, इस्लाम तस्लीम रिजा ताबेदारी की, वही पैगाम सराहत के साथ इस हदीस के अंदर। और ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं, उसमें से एक हदीस ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत उबादा कहते हैं बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समई व ताअती फिल मनशति वल मकरह, बाद रिवायतों में है फिल उस्री वल युस्री। कहते हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख करके बैअत किया, हमने अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रख करके बैअत किया। इस बात पर बैअत किया कि जो भी हुक्म इलाही होगा, हुक्म कुरान होगा, फरमान रसूल होगा, फरमान इलाही होगा, इस्लाम का हुक्म होगा, हम उसे सुनेंगे, पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे, बगौर सुनेंगे, और पूरी इताअत करेंगे, जितनी ताकत है पूरे पथ भर हम उसके मुताबिक अमल करके दिखाएंगे। तो सुनेंगे और मानेंगे, इस पर हमने बैअत किया। अगर मनशति वल मकरह, नशात होगी तब भी, दिल चाहेगा तब भी, चुस्ती होगी तब भी मानेंगे, वल मकरह, दिल नहीं चाहेगा, जी नहीं चाहेगा, तबीयत नहीं चाहेगी, गिरानी होगी, जबर होगा तबीयत के ऊपर, तब भी करेंगे। हमने बैअत किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के हाथ के ऊपर। वरतिल उसरी वल युस्र, मुश्किल होगी तब भी इताअत करेंगे, आसानी होगी तब भी इताअत करेंगे, हर सूरत में इताअत करेंगे। ये हमने बैअत की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर। और क्या कहा, वो और हमने इस पर बैअत की जो मुसलमानों का इमाम होगा, मुसलमानों का हाकिम होगा, मुसलमानों का खलीफा और अमीर होगा, उसके खिलाफ कोई बगावत का झंडा नहीं उठाएंगे, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई फसाद उसके खिलाफ नहीं करेंगे, कोई फरोख नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हमने इस पर भी बैअत किया। और नंबर 3 और लास्ट आखिरी बात क्या है, हमने इस बात पर बैअत किया, हमने इस बात पर बैन किया कि हक पर चलते रहेंगे, हक बोलते रहेंगे। सुनिए गौर से, अन्नकूमा बिल हक़्क़ि और नकूना बिल हक़्क़ि, हम हक पर चलते रहेंगे, हक बोलते रहेंगे, और इसके बोलने और हक पर चलने में कभी भी किसी मलामत करने वाले की मलामतें नहीं करेंगे। हमने इस पर बैन किया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कोई लंबी बात करने के बजाय ये जो कुर्बानी आ रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत की यादगार है, कुर्बानी हज़रत इस्माइल की, इब्राहिम की जो तारीख है उसकी यादगार है। इस पूरे किस्से का जो सबक है, पैगाम है, वो पैगाम यही है मेरे भाइयों कि हम सब जो है वो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाएं। हुक्म कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़ा हुक्म है हमें पहले झुकना है, बिल्डर है पहले झुकना है, फर्ज है पहले झुकना है, वाजिब है पहले झुकना है, सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा बाद में, आम सुन्नतों का दर्जा उसके बाद, मुस्तहब्बात का नवाफिल का दर्जा उसके बाद, फवाइल का दर्जा उसके बाद, लेकिन सबसे पहले क्या है, अरकान, पिल्लर और सुतून जो है उसको पहले अंजाम दो मेरे भाइयों। अगर वाकई मुसलमान है हम और सही बात इस्लाम है हमारे यहाँ, तो हमें सबसे पहले फराइज की पाबंदी करनी चाहिए। ये कुर्बानी नहीं करोगे चलेगा, लेकिन नमाज़ें अगर तुमने हमने छोड़ी है तो शायद ये कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में कबूल हो कि ना हो, इसकी भी कोई महारत नहीं दे सकता। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम को अपनी जिंदगी को बरतने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम तस्लीम रिज़ा के जज्बे को
زندگی کے ہر موڑ پر تقدیر کا فیصلہ ہو، شریف کا فیصلہ ہو، اس پر آمادہ رکھنے تیار رکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک زندہ ہیں ایمان پر قائم رکھے، ہماری زندگی ہماری موت آئے ایمان پر آئے، توفیق پر آئے، سنت پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله۔